Hello dear TYBSC microbiology students, a warm welcome to today's online session. Unfortunately, owing to the pandemic conditions and ongoing situations, we are not able to conduct the offline lectures. So we are heading back to the online mode. So welcome to the one more online lecture. So if you remember, we are studying the chapter 3 of your syllabus, which is the antigen and antibody interactions. So in which we have seen the principles of the antigen antibody interactions, and now we are going to move towards the actual point of our syllabus. Okay, how to visualize this antigen antibody reactions. Okay, हमने precipitation agglutination क्या होता है ये स्टडी किया था, लेकिन उन रिएक्शन का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं फॉर द डायग्नोसिस पर्पस वी आर गोइंग टू सी इन दिस लेक्चर. ओके, सो first thing we are going to see is the visualization of the precipitation. Okay, how to use this precipitation, how to visualize the precipitation we are going to learn. So without wasting any further time, let's start. So अगर आपको याद होगा, we have studied the precipitation reaction कि precipitation क्या होता है. जब कोई सोल्यूबल एंटीजन हम लेते हैं, कोई सोल्यूबल एंटीजन होता है. अब अग्लूटिनेशन एंड प्रेसिपिटेशन में एक बेसिक डिफरेंस है कि प्रेसिपिटेशन तब होता है जब एंटीजन सोल्यूबल फॉर्म में होता है, एंड अग्लूटिनेशन तब होता है जब एंटीजन क्या होता है, इन द insoluble form. Okay, so precipitation reaction is nothing but when the antigen is soluble and it reacts with the equal amount of the antibody in the appropriate condition, in the presence of electrolyte, in the presence of the optimum pH temperature, then it will lead to the visual clumping or visual precipitation formation. Okay, because क्या होता है, अगर antigen antibody are in the equal amount, then the lattice formation takes place and that's why the precipitation reaction takes place. ठीक है, then precipitation reaction हमें क्यों पढ़ना है, क्या ज़रूरत है हमें पढ़ने की, क्यों भाई हमें इस सिलेबस में दिया गया है. सो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो होती है ना, इट इज़ यूज इन द लैब डायग्नोसिस पर्पज़. ओके, हमें अगर पता करना है कि उस पर्सन को वो डिसीज़ हुआ है कि नहीं, ये हम प्रेसिपिटेशन की मदद से करने वाले हैं. अगर हमें पता करना है कि एक सैम्पल में कितने अमाउंट में एंटीजन है, एक सैम्पल में कितने अमाउंट में एंटीबॉडीज़ है, तो हम ये पता कर सकते हैं यूजिंग द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. अगर हमें किसी एंटी टॉक्सिन और टॉक्सिन का टेस्ट करना है कि उस टॉक्सिन के अगेंस्ट ये एंटीडोट काम करेगा कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन करेंगे. ठीक है, बट जब हम पर्टिकुलरली इम्यूनोलॉजी की बात करते हैं तो पर्टिकुलरली हमें एंटीजन एंड एंटीबॉडी के बारे में ही स्टडी करना होता है. ठीक है, सो प्रेसिपिटेशन का हमने लास्ट लेक्चर में जब देखा था, वो लैटिस हाइपोथेसिस हमने स्टडी किया था. उसमें हमने एक देखा था कि देयर वाज अ थियरी दैट कि जोन ऑफ इक्विवेलेंस मिलने पर ही हमें क्या मिलता है, प्रेसिपिटेशन. नाउ व्हाट इज जोन ऑफ इक्विवेलेंस? इफ यू रिमेंबर, जोन ऑफ इक्विवेलेंस मीन्स व्हाट, the concentration of antigen and antibody is optimum or is equal, then only what happens, then only the precipitation is observed. Okay, that is why we get the visualization of the antigen and antibody reaction when the concentration is optimum or equal. ठीक है, this point you remember. now हमने तीन चीज़ें उसमें देखी थी, प्री जोन देखा था, पोस्ट जोन देखा था, और एक और चीज़ देखी थी, दैट वाज द जोन ऑफ इक्विवेलेंस. ओके, तो प्रीजोन मतलब क्या, याद है आपको प्रीजोन क्या होता है? तो प्रीजोन मतलब क्या, जहाँ पे एंटीबॉडी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है और एंटीजन का कॉन्सेंट्रेशन इज लेस. ओके, रिमेंबर दिस थिंग, एंटीबॉडी का कॉन्सेंट्रेशन इज ऑलवेज हाई इन द प्रीजोन. in the post zone, what is the problem, that antigen का concentration is very high as compared to the antibody. and in the zone of equivalence what happens is that antigen और antibody का concentration is same, that is why we observe the actual precipitation in this zone. okay, अब zone क्यों, ये जो ग्राफ में ये जोन है, इतना जो जोन है दैट इज द प्री जोन, ये जो जोन है द पोस्ट जोन, और ये जो मिडल का जोन है दैट इज द जोन ऑफ इक्विवेलेंस. ओके, जोन ऑफ इक्विवेलेंस पे क्या होता है, द एंटीजन एंड एंटीजन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल, दैट इज वाई द प्रेसिपिटेशन और द लैटिस फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. ओके, यहाँ पे क्या होता है, प्री जोन में द एंटीजन कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी लेस और वी कैन से एंटीबॉडी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एंटीजन का कॉन्सेंट्रेशन इज मोर एज कंपेयर टू द एंटीबॉडीज. डोंट गेट कन्फ्यूज. ओके, प्री जोन में क्या होता है, एंटीबॉडीज एक्सेस होती है, पोस्ट जोन में क्या होता है, एंटीजन एक्सेस होता है.
ओके, रिमेंबर दिस थिंग। देन इस थ्योरी का हम यूज़ कैसे करने वाले हैं, तो प्रेसिपिटेशन विजुअलाइजेशन इज डन इन 2 वेज, इन द जेल एंड इन द फ्लूइड। अभी नाम में ही क्या है, जेल में, मतलब क्या आपने लैब में भी परफॉर्म किया है, अगारो जेल की मदद से भी हम विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, या तो फ्लूइड में भी कर सकते हैं। ओके, इन द सीरम ऑल्सो वी कैन डू। देन हाउ इट इज़ डन, तो पहले हम देखेंगे कि फ्लूइड में कैसे किया जाता है विजुअलाइजेशन। तो अगर हमें विजुअलाइजेशन एंटीजन एंटीबॉडी का अगर हमें फ्लूइड में करना है तो इट इज़ डन इन द 2 वेज। ओके, इट इज़ परफॉर्म इन द 2 वेज। द फर्स्ट वे इज़ दैट सिंपल, क्या करना है, एक ट्यूब लेनी है। फॉर एग्जाम्पल हमें अगर 2 एंटीजन है हमारे पास, ठीक है, तो हमने क्या किया, 2 ट्यूब्स ली। ओके, उसमें हमने एंटीजन डाल दिया, ठीक है। अभी हमें देखना है कि ये एंटीजन के अगेंस्ट या फिर हमारे पास जो एंटीबॉडी है उसके अगेंस्ट ये एंटीजन है कि नहीं, ठीक है, हमें ये स्टडी करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, दोनों में भी क्या किया, सपोज इसमें है एंटीबॉडी एंटीजन ए और इसमें है एंटीजन बी, और ये एंटीबॉडी है सिर्फ एंटीजन ए के अगेंस्ट। ओके, तो हमें पता करना है कि इस दोनों में से कौन सा एंटीजन ए है, इन दोनों में से किसके अगेंस्ट ये एंटीबॉडी एक्ट कर सकती है, हमें ये देखना है। तो हमने क्या किया, ये एंटीबॉडी जो है दोनों सैंपल्स में डाली। ओके, दोनों में डाली। अब अगर इनमें से किस में हमें प्रेसिपिटेशन मिलेगा, सिर्फ इसमें, सैंपल नंबर ए में, स्मॉल ए में, ठीक है, उसमें ही हमें क्या मिलेगा, अ लाइन ऑफ प्रेसिपिटेशन, क्योंकि इसी में क्या है, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी है। इसमें आपको मिलेगी क्या, बी में, नहीं, इसमें हमें कोई भी विजुअलाइजेशन नहीं मिलेगा, बिकॉज इसमें एंटीबॉडी जो है, सॉरी एंटीजन जो है वो एंटीबॉडी ए के अगेंस्ट नहीं है, रिमेंबर दिस थिंग। तो इसमें क्या मिलता है, एक लाइन मिलेगी आपको, दैट इज़ नोन एज द रिंग टेस्ट, या तो एक रिंग मिलेगी, ठीक है, दैट इज़ नोन एज द रिंग टेस्ट। अगर आपने इमविक टेस्ट किया है देन यू नो कि उसमें जो इमविक में एक टेस्ट होता है जिसमें एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखता है, ठीक है, अब वो कौन सा है आप मुझे बताओगे। सो मतलब आप सोचो मन में, दैट इज़ द इंडोल टेस्ट। तो यहाँ पे भी एक टेस्ट या एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द रिंग टेस्ट। ओके, इससे हमें पता चलेगा कि ये एंटीजन ये किस एंटीबॉडी के अगेंस्ट है, ठीक है। इसके अलावा एक दूसरी टाइप की फ्लूइड टेस्ट होती है, वो होता है फ्लॉक्यूलेशन टेस्ट, ठीक है। दोनों में ही सेम ही है। फ्लॉक्यूलेशन टेस्ट में क्या किया जाता है, फ्लॉक्यूलेशन आपको पता है क्या होता है, फ्लॉक्यूलेशन मतलब क्या, कुछ ऐसा गाढ़ापन मिलना, ठीक है, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाना सॉल्यूशन। अभी प्रेसिपिटेशन की वजह से ही फ्लॉक्यूलेशन होता है, ठीक है। तो क्या होता है, आपने एक ट्यूब लिया, ठीक है, उसमें एंटीजन डाला, उसके अगेंस्ट आपने एंटीबॉडी डाली, उसको थोड़ा सा शेक किया, ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो सॉल्यूशन गाढ़ा होगा, क्योंकि क्या, क्योंकि उसमें थोड़े एंटीजन एंटीबॉडी का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा हमने ज़्यादा डाला है, इसकी वजह से थोड़ा सा प्रेसिपिटेशन मिलेगा। प्रेसिपिटेशन मिलने की वजह से हमने उसको वोर्टेक्स करने की वजह से क्या होगा, वो प्रेसिपिटेशन पूरा फैल जाएगा इन द ट्यूब, ठीक है। तो ये जो होता है दैट इज़ नथिंग बट द फ्लॉक्यूलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सपोज हमने क्या किया, एक 5 ट्यूब्स ली, ओके, 5 ट्यूब्स ली, उसमें हमने क्या किया, एंटीजन्स डाले, या फिर हमने पहले हम एंटीबॉडी लेते, ठीक है, हमने पहले क्या डाला, उसमें एंटीबॉडीज़ डाली, ठीक है, एंटीबॉडीज़ डाले नॉन इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन के, ठीक है, या तो फिर हम कॉन्स्टेंट के डालते हो किसी के, यहाँ पे हमने क्या डाला, एंटीबॉडीज़। सपोज हमें अभी एंटीजन डिटेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, एंटीबॉडीज़ का कॉन्सेंट्रेशन हम सेम रखेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने डाला इसमें 5 माइक्रोग्राम, ठीक है, 5 माइक्रोग्राम हमने एंटीबॉडीज़ डाले सभी ट्यूब्स में, ठीक है, कांस्टेंट। अब इसमें हम क्या डालेंगे, एंटीजन्स डालेंगे। एंटीजन्स कैसे डालेंगे, इन द इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, मतलब यहाँ पे हमने 0.5 डाला, इसमें 0.1, इस 1, इसमें 1.5, इसमें 2, ऐसा करके हम इंक्रीजिंग अमाउंट में डालेंगे, ठीक है। और एक ट्यूब लेंगे जिसमें हम अननोन नंबर ऑफ एंटीजन डालेंगे, ठीक है, या फिर हम सैंपल डालेंगे, ठीक है, जैसे हम FC टेस्ट किया था हमने लैब में, वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे। सो यहाँ पे व्हाट हैपन इज दैट व्हेन वी ऐड द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीजन, तो प्रेसिपिटेशन कैसे फॉर्म होगा, इन द इंक्रीजिंग अमाउंट, ठीक है। और यहाँ पे हमने फाइनल डाला इक्वल अमाउंट, इसमें क्या डाला हमने 5 माइक्रोग्राम एंटीजन डाला फाइनल ट्यूब में, ओके। फाइनल ट्यूब में हमने क्या किया, सपोज हमने 5 ट्यूब ली, तो 5वीं ट्यूब में हमने क्या किया कि एंटीजन एंटीबॉडी दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल डाला, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज़्यादा प्रेसिपिटेशन हमें मिलेगा। तो अगर हम ड्रॉप
इसका अगर हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो हमें ग्राफ में 5 नंबर की ट्यूब का क्या दिखेगा, सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन की वजह से वो ग्राफ कैसे होगा, इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन का, और स्ट्रेट ग्राफ, ओके, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, और उसमें हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन एट अ पीक, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हमने इसका ये किया, सेंट्रीफ्यूज किया, ठीक है, सेंट्रीफ्यूज किया हमने, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद क्या किया, प्रेस, हमें जो पिलेट मिला, ये सुपरनेटन जो है वो हमने डिस्कार्ड कर दिया, और ये जो पिलेट मिला नीचे, आपने सेंट्रीफ्यूज परफॉर्म किया था ना उस दिन, वैसे ही करना है। हमने ये पिलेट लिया, पिलेट का मेजरमेंट किया कि कितना पिलेट है, कितना ग्राम से या कितना mg पिलेट हमें मिलेगा, वो हमने कैलकुलेट किया। उसके बेसिस पे हम देख सकते हैं कि जिसका ज़्यादा वी कैन से पिलेट का वेट जितना ज़्यादा आएगा उतना हमें पता चलेगा कि कॉन्सेंट्रेशन उतना इक्वल है, ठीक है। हम इतना पता कर सकते हैं यूजिंग दिस टेक्निक, यूजिंग द फ्लॉक्यूलेशन टेक्निक। या तो सिर्फ हम एक कर सकते हैं कि हम उसकी ओडी भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं दी अननोन कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ की मदद से, जैसे हमने FC टेस्ट में भी किया था, हमने ग्राफ ड्रॉ किया और अननोन कॉन्सेंट्रेशन उस ग्राफ से प्लॉट करके पता करा, ओके। वैसे ही हम यहाँ पे भी कर सकते हैं यूजिंग दिस फ्लॉक्यूलेशन, यूजिंग दिस रिंग टेस्ट, ठीक है। दोनों भी इजी ही है। उसमें क्या हमें पता करना है, बस अगर हमें उसका ग्राफ भी नहीं ड्रॉ करना, बस हमें ये करना है कि है कि नहीं सेम कॉन्सेंट्रेशन, या है कि नहीं एंटीजन एंटीबॉडी सेम। तो उससे उसको हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, यूजिंग द प्रेसिपिटेशन। कैसे, हमने एक ट्यूब लिया, उसमें एंटीबॉडी डाली, हमने सैंपल डाला एंटीजन का, और उसको देखा कि रिंग मिल रहा है कि नहीं, या उसको थोड़ा शेक किया, उसमें थोड़ा फ्लॉक्यूलेशन मिल रहा है कि नहीं, ये हमने देखा, और उससे क्या प्रेडिक्ट किया कि वो एंटीजन और एंटीबॉडीज मैच करते हैं कि नहीं। इतना ही हमें डिटेक्ट करना है, ठीक है। थोड़े से ये टेस्ट फॉल्स रिजल्ट्स भी दे सकते हैं, इसकी वजह से इसका ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं है। ऊपर से हमें इतने हम ऐसी गारंटी नहीं दे सकते कि इससे हमें रिजल्ट मिलेंगे ही या नहीं, ओके। सो इसकी वजह से ये टेस्ट ज़्यादा अप्लाई नहीं किया जाता, ओके। इसकी वजह से वी हैव द वन मोर ऑप्शन, दैट इज़ द अगारोज, ओके। अगारोज की मदद से या अगार की मदद से भी हम ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। सो वी विल रिवाइज इट अगेन। हमने फ्लूइड टेस्ट में हमने 2 टेस्ट देखी, रिंग टेस्ट एंड द फ्लॉक्यूलेशन टेस्ट। रिंग टेस्ट में क्या होता है, जब हम एंटीजन एंटीबॉडी डालते हैं और अगर हमें एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, रिंग क्यों दिखता है, मैं आपको एक डायग्राम भी ड्रॉ करके दिखा। रिंग कब दिखता है, जब जहाँ पे वो कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाता है, ठीक है। सपोज मैंने एक ट्यूब लिया और ट्यूब में मैंने क्या डाला, सॉल्यूशन डाला एंटीबॉडी का, और उसमें मैंने एंटीजन का सैंपल डाला। फॉर एग्जांपल मैंने ब्लड सीरम डाला, ठीक है, ब्लड डाला, नॉट सीरम, ब्लड डाला। तो हमने क्या करना है कि हमें देखना है कि वहाँ पे एक रिंग फॉर्म होती है। अब रिंग कब फॉर्म होती है, जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होता है, ठीक है। तो वहाँ पे ही आपको एक सिंगल रिंग दिखेगी इन द ट्यूब। तब क्या होता है, तब हम ये पॉजिटिव डिटेक्शन कर सकते हैं कि इफ़ दैट एंटीजन एंड एंटीबॉडी मैचेस और नॉट, ठीक है। इतना ही आपको याद रखना है कि अगर रिंग फॉर्म हुई तो एंटीजन एंटीबॉडी मैचेस, एंड इफ द रिंग इज नॉट फॉर्म द एंटीजन एंड एंटीबॉडी डू नॉट हैव द मैचिंग और डू नॉट हैव द वी कैन से लाइक लॉक एंड की मॉडल में जैसे होता है, वो दोनों मैच करते हैं कि नहीं, वी आर गोइंग टू डिटेक्ट दैट, ठीक है। सो दिस इज ओनली द थिंग कि 2 टेस्ट किए जाते हैं, फ्लॉक्यूलेशन टेस्ट एंड दी रिंग टेस्ट इन द फ्लूइड कंडीशन, ओके। और हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इसी टेस्ट को हम जेल में कैसे परफॉर्म करते हैं, जो आपने लैब में की भी होगी, सिंगल डिफ्यूजन और डबल डिफ्यूजन, ठीक है। तो हम वो दोनों स्टडी करेंगे। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। If you have any query, if you have any problem related to this point, feel free to contact me, ठीक है। feel free to contact, ask your queries and make sure that you get clear over there only. आप वो query लेके आगे मत जाओ, ठीक है। So thank you and see you in the next lecture.